हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीवी स्कूल। लास्ट टाइम ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡਾਇਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर आप तो इदा कुछ इदा ग्राफ बनना होता है। ठीक है, ये ग्राफ सी। ठीक है, तो इस ग्राफ तो मैं एक छोटी जी टर्म चक ली, ए वाली सेंटर वाली, इस पॉइंट लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट को चक्के आप विड्थ कटनी है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब यदि विड्थ कितनी है। ठीक है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस सेंट्रल मैक्सिमा, यदि विड्थ कितनी है। ठीक है, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा, वो कैलकुलेट करने लिए ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਚੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਡਥ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਟੂ ਟਾਈਪਸ, ਐਂਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਐਂਗੂਲਰ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੀਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਮੈਕਸਿਮਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਿਟ ਹੈ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ एंड द वैल्यू ऑफ दिस गैप इज ए। ठीक है, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ a। ठीक है, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਡਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਡਾਰਕ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰਮ ਦਿਸ ਸਲਿਟ ਟੂ ਦਿਸ ਸਕਰੀਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਸਕਰੀਨ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ t, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟਡ ਬਾਈ ਸਿੰਬਲ ਕੈਪੀਟਲ T। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਵਿਡਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਥੀਟਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਥੀਟਾ ਹੀ ਚੱਕੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵਿਡਥ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੀਟਾ ਟਰਮ ਚੱਕੀ। ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸ, ਇਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪਨ ਸੌਰੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ, ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ, ਮੀਨਸ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इस फॉर्म जाना चाहिए। पर ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਕਰੀਏ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਔਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਗਰ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੱਕ ਲਈਏ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਥੀਟਾ ਮਤਲਬ sin ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ a। ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀ a sin, ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਕੱਢੀ ਸੀ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a sin ਥੀਟਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਫॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, sin थीटा is approximately equivalent similar to theta। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ a ਥੀਟਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਥੀਟਾ is equivalent to थीटा is equivalent to lambda by a। क्लियर है, थीटा के इक्वल आ गया lambda by a, थीटा is equal to lambda by a। ठीक है, इस फॉर्म ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ a ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਵਿਡਥ ਦੀ, ਉੱਪਰਲਾ ਥੀਟਾ ਤੇ a ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਥੀਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, a ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ a ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੱਕ, a ਥੀਟਾ ਤੇ ਵੀ ਥੀਟਾ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਥੀਟਾ। ਠੀਕ, ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ ਤੇ 2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2 ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ a। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 2 ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ a। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਵਿਡਥ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਡਥ, ਲੀਨੀਅਰ ਵਿਡਥ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਡਥ, ਲੀਨੀਅਰ ਵਿਡਥ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੀਨੀਅਰ ਵਿਡਥ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਵਿਡਥ ਹੈ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਲੀਨੀਅਰ ਵਿਡਥ, ਬੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਟਾ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਵਿਡਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੀਨੀਅਰ ਵਿਡਥ ਦੇਖੋ, ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰਕ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ रेडियस। क्लियर है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, that is 2 ਥੀਟਾ, ਤੇ ਆਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is ਲੀਨੀਅਰ ਲੈਂਥ ਹੈ, that is equivalent to beta naught upon radius ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, we can say d, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ beta naught ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, that is equal to 2 ਥੀਟਾ, and this beta naught is called linear width। क्लियर है, एंगुलर विड्थ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਵਿਡਥ क्लियर हो गई टर्म। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਗੂਲਰ ਵਿਡਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਐਂਗੂਲਰ ਵਿਡਥ ਕਮਸ ਫਰਮ ਵਰਡ theta, that is sin theta is equivalent similar to lambda by a
for small angle sin theta is equal and similar to theta, and we can say theta is equal to lambda by a or lambda is equal to theta is equal to lambda by a. clear? ये आ गया 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि अगर थीटा लैम्डा बाय ए है तो 2 थीटा 2 लैम्डा बाय ए. सिमिलरली लीनियर विड्थ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਕ ਅਪਨ ਰੇਡੀਅਸ, ਹੁਣ ਆਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਵਿਡਥ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ d, ਤੇ 2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਇਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਵਿਡਥ ਕਰ ਲਈ. ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ nth ਟਰਮ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਕਸਿਮਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ कि हाँ सेंट्रल मैक्सिमम पता चल गया, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ, ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ, ਥਰਡ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇਖੋ. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ nth ਟਰਮ ਵੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ. ਇਹ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, सेंट्रल मैक्सिमा फॉर nth टर्म, दिस इज इक्वल टू एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द nth एंड द n minus n plus 1th मैक्सिमा. मींस फॉर एग्जांपल अगर ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਥਰਡ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, मींस थर्ड ਤੇ फोर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਥਰਡ ਤੇ फोर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ सेपरेशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ इज कॉल्ड थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा. मींस थर्ड द डार्क ए वाला इस फॉर्म, थर्ड द डार्क तो लेके फोर्थ द डार्क तक ए वाला विच इस फॉर्म रिजल्ट ए वाला, ठीक है. ए वाला डार्क कितना चक लिया, ए वाला डार्क कितना चक लिया, इन्हां दे विच जेडी सेपरेशन होगी, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू, थर्ड मैक्सिमा. हुन वो कटना है, देखो सब तो पहले एंगुलर ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ हैं, ਕਿਹੜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ हैं, एंगुलर सेपरेशन. तो ਉਹਦੇ ਲਈ थीटा n ਦੀ ਵੈल्यू ਕੀ ਆਏਗੀ, n लैम्डा बाय a. सिमिलरली n + 1 मतलब अगली टर्म दी, तो n ਨੂੰ रिप्लेस करता है n by 1, n + 1 लैम्डा बाय a, n + 1 लैम्डा बाय a. तो एंगुलर विड्थ की हो गया, एंगुलर विड्थ इज द सेपरेशन बिटवीन टू थीटा, दैट इज फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा, मतलब द प्रीवियस थीटा, थीटा n + 1 माइनस थीटा n अपन पहले भी कर चुके हैं. बीटा इज द एंगुलर विड्थ, सॉरी थीटा n + 1 माइनस थीटा n, दिस इज द एंगुलर विड्थ. ਹੁਣ एंगुलर विड्थ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, मतलब दो एंगल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਡਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है, दो एंगल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਡਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, दैट इज थीटा n + 1 माइनस थीटा n, या फिर थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 4 माइनस थीटा 3, मतलब कि प्रीवियस टर्म तो ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ n लैम्डा बाय a माइनस n + 1 लैम्डा बाय a. ਇਹ n ਨਾਲ ਇੱਕ n ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ, ठीक है, ਇਹ n ਨਾਲ ਇਹ n ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ, लैम्डा बाय a ਦੋਨੋਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ लैम्डा बाय a. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ट्राई करिए अपने आप, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता रिजल्ट. दिस इज द वैल्यू ऑफ लीनियर एंगुलर विड्थ. ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ एंगुलर विड्थ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ एंगुलर विड्थ ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 2 थीटा, क्योंकि एंगल ਤਾਂ 2 थीटा ही है, विड्थ ਤਾਂ 2 थीटा बन रही है. एंगुलर विड्थ कितनी है, 2 थीटा, 2 थीटा ਦੀ ਵੈल्यੂ ਕੀ ਸੀ, 2 लैम्डा बाय a. सिमिलरली एंगुलर विड्थ ਦੀ अगर वैल्यू ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, लीनियर विड्थ किसके इक्वल है, लीनियर विड्थ इज बीटा नॉट व्हिच इज इक्वल टू लैम्डा d बाय a. ये किਵੇਂ है लैम्डा d बाय, व्हिच इज इक्वल टू एंगुलर विड्थ इनटू d, एंगुलर विड्थ इनटू d. ये देखो लीनियर विड्थ इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ इनटू रेडियस, थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस. ये वही टर्म है, क्लियर हो रही है, एंगुलर विड्थ इनटू d मींस दिस इज थीटा, ये हैगा आर्क, ये हैगा साडा रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क, ये नीचे आएगा था रेडियस. अपन आर्क की वैल्यू करनी है विच इज लीनियर विड्थ. ये क्या आ जाएगी, लैम्डा d बाय a. ये किवें आई, क्योंकि एंगुलर विड्थ की वैल्यू अपन कड्डी है लैम्डा बाय a, ते इनू d दे नाल मल्टीप्लाई कीता है, क्या आएगा लैम्डा d बाय a. हुण ध्यान नाल देखो, लीनियर विड्थ दी वैल्यू अगर अपन कोरिलेट करनी होवे इहदे नाल, ठीक है, लीनियर विड्थ ते ए वाली वैल्यू नाल कोरिलेट करना होवे, स्लिट विड्थ, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ए नीचे आ रहा है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ. लॉजिकली देखो, जिन्नी ये विड्थ घटती जाएगी, जिन्नी विड्थ घटती जाएगी, जिन्ना ए घटता जाएगा, ए वाली विड्थ घटती जाएगी, उन्ना ही ज़्यादा ए बढ़ती जाएगी. क्लियर है, मतलब ए वाला जिहड़ी वैल्यू है उन्नी ज़्यादा इंक्रीज करती जाएगी. मीनस ए दे घटन दे नाल बीटा दी वैल्यू इंक्रीज करती है. क्लियर है, अगर ए बढ़ जाऊगा तो बीटा जिहड़ा बहुत ज़्यादा घट जाऊगा. एक टाइम आएगा ए दी वैल्यू पर्टिकुलर स्टेज पे आके बीटा दी वैल्यू सानू अपन नू बैंड दिखनी बंद हो जाएंगे. क्लियर, आप अगर विड्थ बहुत ज़्यादा बता देंगे फिर वो नॉर्मल डायमेंशंस बन जाएंगे. उस डायमेंशन में आप स्टार्टिंग में कितना गया कि डायफ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है,
डायफ्रैक्शन पॉसिबल करता है जब ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਅਪਰਚਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਅਪਰਚਰ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਟਰਮ? ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ऑफ रे ऑप्टिक्स। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म। एक साइंटिस्ट आए फ्रेसनल, उन्होंने इस टर्म ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਲਾਈਟ ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡੀ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਡੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਏ, ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਏ। ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏ ਪੁਆਇੰਟ, ਏ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਅਸਿਊਮ ਇਹ ਬੀਟਾ ਨੋਟ ਸੀਗਾ, ਬੀਟਾ ਨੋਟ ਬਾਈ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ y ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫॉर एग्जांपल ਇਹ y ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? y। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੌਜੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਫ੍ਰੈਸਨਲ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਕਦ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ कद वैलिड है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स कद वैलिड है ते वेव ऑप्टिक्स कद वैलिड है। हुन फॉर एग्जांपल ये देखो, ए वाला इथे स्क्रीन ते लॉजिकली फिर तो देखो ये डायग्राम में दोबारा ड्रॉ करदा, तुहानू डायग्रामेटिक फॉर्म च समझांदे हैं। ठीक है, ये अपना आ गया इस फॉर्म च, ये स्क्रीन आ गई। ठीक है, अगर ये रे ऑप्टिक्स होंदी, अगर ये रे ऑप्टिक्स होंदी ते इन्हें बिल्कुल स्ट्रेट जाना सीगा, इस फॉर्म च जाना चाहिए सीगा। पर यह की है, ये अपनी स्लिट है, इत्थे देखो ये स्लिट है इस फॉर्म पर। ये वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग ये किवें जा रही है? इदां ते इधरों दी इस फॉर्म च। क्लियर हो रही टर्म? इस फॉर्म च डेविएट कर दी है। ठीक है, बेंड कर दी है, इधरले पासे जा रही है। ठीक है, हुण देखो हुण सानू पता चल गया कि हाँ इदां जा रही है, इदां जा रही है। आपां स्टार्टिंग विच ही कीता सीगा। ठीक है, हुण लॉजिकली देखो ये जाने जा कि मेरी ये जाने की भी चीज सी, अगर ये ऑप्टिक्स होती बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। हुण देखो ये अगर डिस्टेंस जिहड़ा है ये वाला डिस्टेंस जिन्हों डी दिता आपां कह दिंदे फ्रैसनल डिस्टेंस है। किहड़ा डिस्टेंस है? फ्रैसनल डिस्टेंस। इहनूं ZD लिख दिंदे हैं, फ्रैसनल डिस्टेंस या DF लिख दिंदे हैं, कुछ भी लिख दिंदे हैं। ठीक है, अगर ये फ्रैसनल डिस्टेंस आपां पास ले आइए इस स्क्रीन में, ये स्क्रीन शिफ्ट करती तो ਇਹਦਾ डिस्टेंस की हो गया? कट गया, डिस्टेंस कट गया, d ਦੀ वैल्यू डिक्रीज कर गई। ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ d ਦੀ वैल्यू घटा रहे हैं ਤੇ डायफ्रैक्शन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਬਣ ਰਹੀ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ डायफ्रैक्शन ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ लॉजिकली देखो ਹੁਣ ਇਹ डायफ्रैक्शन थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हो गया। अगर आप इनू इस स्क्रीन ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸ ले आइए, इधर ले आइए, ਇਹਦਾ डायफ्रैक्शन देखो ਹੋਰ घट गया। अगर मैं इनू ਹੋਰ नेड़े ले आवां तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक है, मींस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आंदा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आंदा है जिस पॉइंट ते वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाती है, ऑप्टिक्स खत्म नहीं होती, रे ऑप्टिक्स शुरू हो जाती है। मींस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर आप इहदे स्क्रीन नूं अगर इहदी सेपरेशन नूं घटाना शुरू कर दिए, इफ वी डिक्रीज द सेपरेशन, if we decrease the separation between the screen and the slits, अगर अपन सेपरेशन घटा दिए किहदी किहदी स्क्रीन ते स्लिट्स दी, फिर की हो रहा? वेव ऑप्टिक्स
start converting into ray मीनस रे ऑप्टिक्स जी है वो एंटर कर रही है कि एंटर कर रही है रे वेव ऑप्टिक्स एंटर्स टू रे ऑप्टिक्स ते वो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस जब रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स के विच कन्वर्ट हो जाती है उस डिस्टेंस को इन्होंने नाम दिता है फ्रेसनल डिस्टेंस। की नाम दिता है फ्रेसनल डिस्टेंस एक्चुअली हैगी है फ्रेसनल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो डिसाइड करके सानू दसदा है कि रे ऑप्टिक्स केड़ी है ते वेव ऑप्टिक्स केड़ी है। मिनिमम डिस्टेंस है कि उससे डिस्टेंस तो कट होएगी अगर मिनिमम डिस्टेंस होगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल उस डिस्टेंस नाम देता है डी एफ हूं नाम देंगे अपन डी एफ अगर ए डी एफ है ठीक है ए साडी की सी ए ठीक है ए डी एफ है अगर ए जड़ा ए है अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू ए दी विड्थ ए डी एफ ये दोनों अप्रोक्सीमेटली चलो होर इजी फॉर्म च दसना है बाद च लेके आंदे हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म च अगर ए डीएफ दी वैल्यू स्लिट क्योंकि स्लिट ही है डीएफ दे नाल अगर डी ए दी वैल्यू स्लिट दे नेड़े आवे नियर बाय मींस ए मिनिमम डिस्टेंस है ए वाला डिस्टेंस है इस तो आगे जाएगी एदे नियर बाय आएगी ता ओ की फॉलो करेगा ओनली रे ऑप्टिक्स इस डिस्टेंस से वो की कर रहेगा वो सेंटर पॉइंट आ गया मींस रे ऑप्टिक्स एंटर्स टू वेव ऑप्टिक्स इस तो ज्यादा डिस्टेंस तो डीएफ तो ग्रेटर होएगा ग्रेटर देन डीएफ फिर वो किनु करेगा इट फॉलोस वेव ऑप्टिक्स मींस फ्रेसनल डिस्टेंस एक एवो डिस्टेंस है जेड़ा डिसाइड करता है कि रे ऑप्टिक्स कद होएगी ते वेव ऑप्टिक्स कद होएगी जदे बिल्कुल पास विच ले आवांगे वो रे ऑप्टिक्स विच कन्वर्ट हो जाएगी दूर लेके जावांगे तो वेव ऑप्टिक्स विच खत्म हो जाएगी। क्लियर है टर्म जी हुण देखो वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स नु जर्नलिस्ट फॉर्म च आपां किवें लिखना मैथमेटिकल फॉर्म च किवें लिखना हुंदा ठीक है। हुण देखो थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए ठीक है। हुण साडे कोल यही डायग्राम फिर तो जिवें सीगा साडे कोल इस फॉर्म च दो स्लिट ने ठीक है ये साडे कोल स्क्रीन पे सी ठीक है इस फॉर्म च आपां दिखा रहे सीगे ठीक है इस फॉर्म च कुछ इस फॉर्म दिखा रहे सी ठीक है इन्हों एक्चुअली बार विच दिखा रहे सी इतना ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट है हमें ठीक रहेगा ठीक है इन्हों रहने दो ठीक है ये साडे कोल सीगी टर्म डी इन्हों नाम देता आपां टोटल नाम से बीटा ठीक है बीटा बीटा टू बीटा इस फॉर्म च लिता होगा चलो कोई नहीं जो भी लिता होगा तो पहले ये साडा ए ठीक है। हुण देखो आपां क्या थीटा दा फार्मूला दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए जनरल ये थीटा दा फार्मूला की होंदा लैम्डा बाय ए एक किवें बने सी एंगुलर सीगा ये केड़ा सीगा एंगुलर दे विच ठीक है एंगुलर विड्थ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए आई कितनों सी स्मॉल एंगल वास्ते थीटा जेड़ा स्मॉल हो जांदा है sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू ए थीटा सीगा तो इधर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए। हुण देखो इफ द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस d अगर स्क्रीन किथे रख दी आपां इस फॉर्म में डिस्टेंस d ते उथे डिस्टेंस d ते रख दी तो लीनियर विड्थ d है लीनियर विड्थ का फार्मूला क्या होगा x इज इक्वल टू d लैम्डा बाय a ये आपां पढ़ी सीगी लीनियर विड्थ इज इक्वल टू एंगुलर विड्थ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस b रेडियस जिन्हों आपां कहते सीगा ठीक है ये बनया कितना सी एंगुलर विड्थ दैट इज थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस ठीक है तो इथे आर्क दी वैल्यू की लीती है आपां आर्क जेड़ा आपां कट रहे हैं ठीक है थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस x ठीक है तो थीटा दी वैल्यू दैट इज इक्वल टू रेडियस दी वैल्यू की है दैट इज d थीटा दी वैल्यू दैट इज लैम्डा बाय a थीटा दी वैल्यू लैम्डा बाय a ठीक है इधर ये आर्क जेड़ा है वो किदे इक्वल लिता आपां x दे इक्वल लिता थे किदे इक्वल लिता दैट इज इक्वल टू x थीटा इक्वल टू a वाला x ठीक है ए बी एक्स क्लियर एक्स एक्स लिखते हैं। हुण देखो अगर आपां कहिए एक्स दी वैल्यू स्मॉल होए किदी वैल्यू स्मॉल होए इफ एक्स इज स्मॉल अगर एक्स दी वैल्यू स्मॉल है तो फिर रे ऑप्टिक्स वैलिड है एक्स दी वैल्यू स्मॉल होना मतलब ए वाली एक्स दी वैल्यू स्मॉल कद होएगी एक्स कद स्मॉल होएगा जदे आपां नेड़े लेके आवांगे ठीक है ये देखो एक्स स्मॉल हो रहा है इत्थे एक्स दी वैल्यू और ज़्यादा स्मॉल होएगी लॉजिकली देखे जाए इस पॉइंट तक जब पहुंच जाएगा तो एक्स की वैल्यू जी है बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी
ठीक है, x की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। ये x की वैल्यू कितने इक्वल आ जाए, ए x देखो ए वाला x इतने भी x, ए x कितने इक्वल आ जाए, a ਦੇ इक्वल आ जाए। इफ x इज स्मॉल, x की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए तो x की वैल्यू कितने इक्वल आ जाए, a ਦੇ इक्वल आ जाए। उस कंडीशन ਤੇ जब x ਦੀ वैल्यू कितने इक्वल आ जाए, a ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੈਸਨਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੈਸਨਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫ੍ਰੈਸਨਲ डिस्टेंस। वही डिस्टेंस डिसाइड करता है कि वो रे ऑप्टिक्स ਵਿੱਚ एंटर कर रही है या वेव ऑप्टिक्स ਵਿੱਚ एंटर कर रही है। अगर हम देखो इधरों दी ਆਪਾਂ कहता है x जब a ਦੇ इक्वल आ गया, अगर x a ਦੇ इक्वल है तो a वाली इक्वेशन की बन गई a = d लैम्डा बाय a, तो a = d लैम्डा बाय a, d ਜਿਹੜਾ df आ गया, तो df ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ a² ਬਾय लैम्डा। इस डिस्टेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फ्रैसनल डिस्टेंस। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, फ्रैसनल डिस्टेंस। अगर a af ਦੇ इक्वल आ जाए, a af ਦੇ इक्वल आ जाए, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੋਨ ਆਫ फ्रैसनल डिस्टेंस, ਜ਼ੋਨ ਆਫ फ्रैसनल डिस्टेंस। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਟਰਮ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਟਰਮ ਸੀਗੀ। ਇਹ फ्रैसनल ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅੰਡਰ ਆਫ ਲੈਮਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 6500 ਰਫਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ 6500 ਆਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 6500 ਆਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ, 6500 ਆਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਲਿਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਲਿਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, the distance between screen and slit is कितना रखिए 20 सेंटीमीटर। चलो भी ठीक है, 20 सेंटीमीटर रखता, ठीक है। अपन करना है a, अपन करना a if angular separation between them is 30 degree means इतना। चलो तुसी एम करो, एक तो a भी ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢੋ, कैलकुलेट also x, ठीक है। अपन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट the value of linear width and slit width if light that is monochromatic red color दी monochromatic रेड कलर दी, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग वेवलेंथ ऑफ कितनी वेवलेंथ देती है पा, दैट इज 6500 आंगस्ट्रॉम, 6500 आंगस्ट्रॉम। एंड सेपरेशन बिटवीन किधर विच स्लिट एंड स्क्रीन कितना देता है is 20 सेंटीमीटर एंड एंगुलर width is 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री ਤੇ ਇਹ 30 डिग्री टोटली 60 डिग्री। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਵਾਜੀਵਾ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਲੈਮਡਾ = a sin ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। a = ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣੀ, that is lambda sin of theta, ठीक है, क्लियर है टर्म। लैम्डा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is a sin थीटा। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ लैम्डा = a sin थीटा, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ लैम्डा ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਰ, लैम्डा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, that is 6500 आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम मतलब मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर विच इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2 मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 13 130 00 000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और वी कैन से वैल्यू ऑफ a इज 1.3 इंटू 10⁻10 × 3 × 7
ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਆ 6। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, बड़ी छोटी आई 1.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। हाँ जी ठीक है। हुण x की वैल्यू किवें कैलकुलेट करांगे, x की वैल्यू किवें कैलकुलेट करांगे, हुण सानू पता है थीटा की वैल्यू, थीटा के इक्वल होंदा है दैट इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, बिल्कुल सही। ते sin थीटा के इक्वल आ जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा इज इक्वल टू आर्क की वैल्यू x ਤੇ रेडियस की वैल्यू 20। थीटा पता है, ये पता है सानू, इधरों की x की वैल्यू तुसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। sin 30 1/2 मीनस इधरों की 20 ऊपर गया, मतलब x की वैल्यू दैट इज रफली 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मीनस 20 सेंटीमीटर। क्लियर है टर्म, ये ईजी ने, कोई टफ नहीं है, ठीक है। अगर तुम tan बीटा के नाल भी करोगे तो 1/√3 आ जाएगा, पर आप sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ले लिया, क्योंकि सेपरेशन बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, अप्रोक्सीमेटली ये सेंटीमीटर विच ही आएगी। ये क्लियर है क्वेश्चन। हुण नैक्सट देखो ये नाल दा होर वर्जन देखो, आप अगर इस फॉर्म च क्वेश्चन कढ़ना होंदा, फॉर एग्जांपल इस फॉर्म च कढ़ना होंदा कि आप कह दिए कि कैलकुलेट द फर्स्ट मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, की करना है फर्स्ट मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, कैलकुलेट द फर्स्ट मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। तो चलो अच्छा जिहा क्वेश्चन ही बना के देंगे हैं। हाँ जी, हुणे देखो ये दो क्वेश्चन दिते इत्थे, ठीक है। फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ विड्थ 1 माइक्रोमीटर, कितनी दी है विड्थ की वैल्यू 1 माइक्रोमीटर, मीन्स एक्स की वैल्यू या बीटा की वैल्यू 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर। इज ऑब्जर्व्ड विद द लाइट ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू सानू कितनी दी है, लैम्डा की वैल्यू दी है 500 नैनोमीटर। कैलकुलेट द हाफ एंगुलर विड्थ, हुण एंगुलर विड्थ आपां करनी है हाफ एंगुलर विड्थ। हुण थीटा का फॉर्मूला की सीगा, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, चलो लैम्डा इज इक्वल टू की सीगा, लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। आपां एंगुलर विड्थ करनी है हाफ, मतलब sin थीटा की वैल्यू कटनी है, ठीक है। इस फॉर्म च एंगुलर विड्थ जी मारे ए थीटा ते भी थीटा, ठीक है। हुण सानू पता है sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ विड्थ हैगी है, ठीक है, सिंगल स्लिट दी, सॉरी सिंगल स्लिट दी सीगी, स्लिट दी मींस ए वाली स्लिट दी वैल्यू दी है, ए दी वैल्यू। हुण देखो sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 500 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻⁻6 मीनस इनू सॉल्व किया 2 0 नाल 2 0 कटियां नहीं गईयां, कितनी हो गई नैनोमीटर है, नैनोमीटर मतलब मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9। हुण कटिंग करो, ये बच गया साडे कोल 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 ते ए किता ते साडे कोल की आ गया 0.5, sin थीटा 0.5 का तो होएगा, sin थीटा 0.5 उदो होएगा, मतलब हाफ। ये आ गई साडी एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, हाफ एंगुलर विड्थ, ठीक है। ये आ गई sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 ते थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 30 डिग्री, मींस sin थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अगर फुल दी पूछी होंदी तो थीटा की वैल्यू देखो इस फॉर्म च, थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, दूसरी वाली दी 30, टोटल कितनी आएगी 60 डिग्री। ये सीगा जनरल क्वेश्चन। ये नाल दा देखो एक होर तुहानूं मैं होमवर्क देवां, चलो ये नाल दा क्वेश्चन तुहानूं मैं बाद दे दूंगा होमवर्क लास्ट विच, ठीक है, या नैक्सट लैक्चर से तुहानूं मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उहदे विच तुसीं मतलब कि ट्राई जरूर करने है। हुण अज मैं इहो जे इहदे नाल दे क्वेश्चन जरूर पाऊंगा। हुण देखो नैक्सट विच देखो सानूं क्या है, यही सेम टाइप दे विच फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिहदी विड्थ सानूं दित्ती है 1.2 माइक्रोमीटर। हुण देखो इत्थे किसी हाफ विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम करना है। हुण आपां इत्थे की करना है, इत्थे आपां एंगुलर पोजीशन भी कटनी है ते एंगुलर विड्थ भी कटनी है। इत्थे सिर्फ एंगुलर विड्थ कटने वास्ते क्या सीगा सेंट्रल मैक्सिमा दी, इत्थे आपां एंगुलर पोजीशन भी कटनी है, एंगुलर पोजीशन भी कटनी है। सब तो पहले देखो ए दी वैल्यू कितनी, ए दी वैल्यू 1.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा इत्थे आपां एक टर्म मिस करती लैम्डा दी वैल्यू,
ठीक है। लैम्डा की वैल्यू फॉर एग्जांपल ये आप ले लेंगे, लेट कर लेंगे, ये कलर है साडे कोल रेड कलर ही है, चलो 6500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ए दी वैल्यू आ गई, ठीक है। हुण देखो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा इज लैम्डा बाय ए। तो हुण देखो इत्थे की आ जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी sin थीटा दी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 6500 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 ते एंगस्ट्रॉम माइक्रोमीटर 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਕੀਤਾ 10 रेज़ टू पावर -4, 10 रेज़ टू -4 ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, बच गया 10 ਦੀ पावर -2, पॉइंट हटाया 10 ऊपर गया 10 ਦੀ पावर -1, 12 5 ਦਾ 60, 50 बचा 5.4 इंटू 10 0.54, ठीक है। 0.54 आ गई sin थीटा की वैल्यू, मतलब कि थीटा की वैल्यू sin थीटा की वैल्यू 0.54 मीनस थोड़ा जिहा ऊपर जा रही है वैल्यू, ठीक है। 0.54 sin थीटा इज, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 0.54, साइंटिफिक कैलकुलेटर नाल या लॉग टेबल तो तुसीं ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 थीटा की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2 टाइम sin इनवर्स ऑफ 0.54, क्लियर। ये जी टर्म है, दिस इज द विड्थ, ठीक है। ये पोजीशन ਆਪਾਂ करते इस तरह, ये क्लियर है। ये सिंपल टर्म्स ने। ਹੁਣ देखो ਸਾਨੂੰ ਜੇ अगर क्वेश्चन पूछ लें कि फर्स्ट मैक्सिमा कड्डो, फर्स्ट मिनिमा कड्डो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ਸਾਨੂੰ ਇਹ लो एक क्वेश्चन देखो, एक फॉर एग्जांपल देखो ਸਾਨੂੰ क्वेश्चन देता जिवें ए ਦੀ वैल्यू ਦਿੱਤੀ है, ਸਾਨੂੰ कुछ भी देती, फॉर एग्जांपल 1.2 ही रख लो माइक्रोमीटर, ठीक। ਸਾਨੂੰ कहता है कि अगर जी लैम्डा है वो रेड कलर ही है, फॉर एग्जांपल 6500 एंगस्ट्रॉम, स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। हुण आपां नूं कहता कि इहदे विच आपां फर्स्ट मिनिमा, चलो ए दी वैल्यू तुसीं कैलकुलेट करनी है, थोड़ा अलग ही कर देंगे। हुण ए दी वैल्यू तुसीं कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा एंड फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। अगर फर्स्ट मैक्सिमा मिनिमा ते फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। ए दी वैल्यू कैलकुलेट करनी है दोनों वास्ते, दो केसेस वास्ते। अगर फर्स्ट मिनिमा ते फर्स्ट मैक्सिमा आपां दो अलग अलग केस कर रहे हैं, उन्हां विच थीटा दी वैल्यू दोनों वास्ते सेम आ रही है 30 डिग्री। अगर थीटा दी वैल्यू 30 डिग्री ते फर्स्ट मिनिमा बन रहा है तो लैम्डा इन्ना है, फर्स्ट थीटा दी वैल्यू 30 डिग्री ते फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है तो लैम्डा दी वैल्यू इनू, ए दी वैल्यू कितनी आएगी दोनों केसेस विच, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया कि पूछ रही है, क्वेश्चन नूं समझो फिर तो। ਆਪਾਂ क्वेश्चन पूछिया ए दी वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्स्ट मैक्सिमा ते फर्स्ट मिनिमा ते, ए दी वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्स्ट मैक्सिमा ते फर्स्ट मिनिमा ते, अगर थीटा दी वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। फॉर एग्जांपल थीटा दी वैल्यू 30 डिग्री, ਆਪਾਂ फर्स्ट की ले लिए मैक्सिमा, की ले लिया ਆਪਾਂ मैक्सिमा। मैक्सिमा की होता है, मैक्सिमा कदों बनता है, मैक्सिमा उदों बनता है जब थीटा दी वैल्यू कितनी होवे sin थीटा। देखो ए sin थीटा की सीगा लैम्डा, ठीक है। ए केड़े केस आंदा है, दिस इज फॉर मिनिमा, याद रखनी तुसी टर्म, दिस इज फॉर मिनिमा। ते ए sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय ए, ए कद आंदा है, दिस इज फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, क्योंकि अपन जनरलाइज फार्मूला कीता है n लैम्डा इज इक्वल टू की दैट इज ए लैम्डा इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, सॉरी ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। ए एक फार्मूला कीता सी n लैम्डा, ठीक है। ये जनरलाइज फार्मूला कीता सीगा, या फिर इनू इस फॉर्म में पूरा फुल लिख दो, ए sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ए किहदे वास्ते है, मिनिमा, किहदे वास्ते मिनिमा। अगर फर्स्ट करनी है n दी वैल्यू 1 पुट कर देनी है, 2 कटनी है 2 पुट कर देनी है। सिमिलरली ए sin थीटा दी वैल्यू, ए sin थीटा दी वैल्यू 2n + 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। ये भी एक जनरलाइज्ड फार्मूला सीगा। ए कदों करना है, n दी वैल्यू 0 1 2 सो ऑन इस फॉर्म, ठीक है। हुण आपां की करना है, फर्स्ट मैक्सिमा फार्मूला क्या आएगा, n दी वैल्यू 0 पुट कीती, ठीक है। ये की बन जाएगा लैम्डा बाय 2, n दी वैल्यू सॉरी 1 पुट करनी, क्योंकि इत्थे आपां स्टैंडर्डली 1 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, n दी वैल्यू 1 पुट की 3 लैम्डा बाय 2, मतलब a sin थीटा दी वैल्यू कितनी आ गई 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, वाह जी वाह, हाँ ठीक है। हुण सानू देखो a इंटू sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 लैम्डा दी वैल्यू 6500 एंगस्ट्रॉम 10 दी पावर -10 अपॉन ए दी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ए दी वैल्यू कड्ढनी है आपां ठीक है इत्थे तक क्यों लिखिए बार बार sin थीटा लैम्डा बाय ए मतलब ए इत्थे ही लिख देंगे चलो ते ए दी वैल्यू कितनी होगी 3 into 6500 3 into 6500 कितना हो गया 6500 3 दे नाल कीता 3 5 दा 15 3 6 दा 18 19 00 10 दी पावर -10 डिवाइड बाय sin 30 कितना होंदा 1/2 मतलब 1 डिवाइड बाय 2 मतलब ये 2 टाइम हो गया 195 दा डबल कितना हो गया 195 5 5 10 19 290 00 into 10 raised to power -10 ये आ गया ਤੁਹਾਡਾ फाइनल रिजल्ट मतलब ए दी वैल्यू आ गई 2.9 into 4 1 2 3 4 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ 10 raised to power -6 मीटर छोटू ही स्लिट कितनी है छोटू ही स्लिट बहुत छोटू स्लिट क्लियर है ये क्या गया फर्स्ट मैक्सिमा ਹੁਣ सिमिलरली फर्स्ट मिनिमा करना है a sin थीटा = लैम्डा ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯਾਦ ਨਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ लैम्डा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ that is equal to 6500 into 10 raised to power -10 divided by sin theta मतलब ये multiply by 2 clear हो रही टर्म इथे 3 lambda by 2 इथे सिर्फ lambda by 2 मतलब a दी वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 दा डबल कितना हो गया 65 130 00 into 10 raised to power -10 ते डबल नहीं 000 130 ठीक है 3 कट गए 4 1.3 into 10 raised to power -6 मीटर क्लियर हो रही है टर्म बच्चे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਟਫ ਨਹੀਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ